टाइम के साथ जब तक गोल नहीं जुड़ा वो गोल नहीं है कि मैं ये चीज इंप्रूव कर लूंगी, बस कर लूंगी तो कर लूंगी, दैट्स ऑल, हो गई ना हुई तो भी कोई मसला नहीं। तो दिस इज नॉट स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल वो है जिसको आप अचीव करें। डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, तो फिर आप देखें पीपल विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग टू यू। अब लोग डिग्री पे कम जाने जाते हैं और उनकी लाइफ स्किल्स पर ज्यादा। आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस तो करें कि मैं क्या काम कितनी देर में कर सकती हूँ। दूसरों की नजर से खुद को मत देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ रिलायंट करें, अपनी एबिलिटीज पे खुद यकीन करना सीखें, तो देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ओके जी, माय नेम इज सुंबल खान, एज मिस्टर कमर इंट्रोड्यूस्ड मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट टाइम मैनेजमेंट. It has made really easy for me to describe upon this topic. Before starting the workshop, I would like to introduce myself because only name is not sufficient to know about any person. I am an educationist by profession, and I am running my own school, the Educators Jinnah Campus, from last 22 years. In 2003 it was started, and alhamdulillah I have been experiencing teaching, administrating and managing many tasks over there. As learning and teaching is my passion, so I started teachers training around 10 years before, and I did a special training course that is known as FDI, Faculty Development Institute, and it has been done from an international organization known as Lions Clubs International, and this is the pin that acknowledge and recognize me as a faculty development trainer. Secondly, experience is everything, you know. So I have been taking training sessions for my teachers, developing multiple skill set in them, or improving their teaching skills, introducing them with the latest methods of teaching, subject teachers training, and soft skills development has been my majors. Similarly, as I told you that Lions Clubs International has been the biggest platform, and they have trained me as a trainer. So I have trained many faculty members or many portfolio holders for their roles and responsibilities so far. From last 4 years I have been working for them. So this is something that would like to tell you about myself. By qualification, I am double masters. I have completed my masters in economics in 2007, and then in 2019 I upgraded my degree by doing TEFL, and that makes teaching English as a foreign language. It is a professional program also, and it enables one person to teach in different ways or effective ways. So this is all about me. If you would like to ask any question, I am ready to answer you. So let's begin with our topic of today. The topic assigned to me is time management. Ji, before knowing any topic, we should work on the previous knowledge. Do you know something about time management already? कभी सोचा हो कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये तो काफ़ी हॉट टॉपिक है these days. In every field, in every company, in every organization, एम्प्लॉयज़ को टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है. जैसे अभी एक टीचर ने कहा कि टाइम इज़ मनी. इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम टाइम से मनी ले सकते हैं, लेकिन आप अर्न कर सकते हैं. यू कैन इम्प्रूव योर स्किल सेट, आप अपनी वर्थ बढ़ा सकते हैं, सो दैट पीपल कुड मतलब रन टूवर्ड्स यू कि आप हमारे लिए काम करें. चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम करें, किसी स्कूल के लिए काम करें. देखें, कुछ टीचर्स होते हैं, मैनेजर्स डोंट वांट टू लूज देम. उनकी क्या रीज़न होती है, वो क्यों इफेक्टिव हैं? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर टाइम इन अ बेस्ट वे. वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, एवेल्युएट भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, स्कूल की अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी नीड, टाइम मैनेजमेंट एवरी टाइम. तो इसी तरह ये एक प्रोसेस है. आपको अगर एक देखें, हमें पीस ऑफ लैंड लेते हैं और हम डिफरेंट आर्किटेक्ट्स को कहते हैं कि उसके लिए मैप बना कर दें. अब जगह तो हमारी उतनी है, 3 मरलस है, 5 मरलस है, 10 मरलस है, लेकिन हम किस मैप को प्रेफरेंस देंगे जहां पर हमें लगेगा कि हाँ, दे हैव मेड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट.
आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेहतरीन तरीके से लगाने को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं ना। तो इसी तरह वक्त को जब आप बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे तो आप उसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं। आपको देखें सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए, आपको फैमिली टाइम भी चाहिए, आपको मल्टीपल चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? व्हेन यू यूज़ इट इफेक्टिवली। 2 लोगों को ट्रीज चॉप डाउन करने के लिए 6 आवर्स दिए जाते हैं, एक ने और उनको साथ एक एक्स दिया जाता है। एक पर्सन तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन पास होती है वो अपना काम स्टार्ट कर देता और ट्री को पहले कट डाउन करने के लिए हिट करना शुरू करता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा अपना एक्स शार्प करता है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी आवर्स? 4 आवर्स। और उसके बाद ट्री एकदम से वो चॉप डाउन कर देता है। अब आप मुझे बताएं कि कौन जो है उसने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया? सेकंड पर्सन ने। उसने स्मार्ट वर्क किया ना, उसने हार्ड वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क का रिजल्ट अभी भी बुरा ही होगा, क्योंकि जब वो एक मतलब अनशार्पन एक्स के साथ ट्री कट डाउन कर रहा है तो उसमें वो सफाई नहीं होगी, नीटनेस नहीं होगी, उसकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। बट द अदर वन वॉज शार्प और उसने अपने एक्स को भी पहले शार्प किया। एंड द सेकेंड वन वॉज अब्राहम लिंकन। ये उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। हमारे आज के सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा टाइम तभी मैनेज होगा जब आज के सेशन से हम ये 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करके जाएं। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये भी अभी यहाँ पर एक टीचर ने डिस्क्राइब किया था, यस इट वाज यू, कि हम बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हम उनको कहीं काउंट ही नहीं कर रहे, और एंड में कहते हैं कि सॉरी इनफ टाइम नहीं था इतने काम करने के लिए जो हमने टारगेट किए थे। इसी तरह सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज को भी आज जानेंगे जिनसे आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी। एंड थर्ड वन इज टू अप्लाई सम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट यू कुड अप्लाई टू डील योर डेली रूटीन। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको नोट कर लें, देख लें, और अब हम आगे जो भी एक्टिविटीज़ या लर्निंग करेंगे उसमें हम ये सब चीज़ें लर्न करेंगे। जी, कितने आवर्स आपको मिलते हैं पर डे? पर डे हमारे पास कितने आवर्स हैं टू वर्क, टू लर्न, टू रेस्ट? सॉरी, 24 आवर्स होते हैं एवरीबडी। कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास 22 आवर्स हों? कोई ऐसा जिसके पास 27 आवर्स हों? ठीक है, तो हम सब के पास सिमिलर टाइम है। 24/7 का एक वर्ड हम बोलते हैं, तो 24/7 में हमारे पास 168 आवर्स हैं। अच्छा, 168 आवर्स ही हमें मिले हैं सिर्फ, या बाकी लोगों के पास भी इतने ही हैं? सबके पास हैं। अभी कुछ एग्जांपल सर कमर ने भी दी कि वो लोग जो देखें साइंटिफिकली मतलब या साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट की, जिन्होंने इतना मतलब इन्वेंशंस करके सरप्राइज किया वर्ल्ड को, ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जैसे मदर टेरेसा हैं, हेलन केलर हैं, और हमारे जैसे राइट ब्रदर्स हैं, इतने लोग हैं। ये सब लोगों ने जो वर्ल्ड में चेंज किया, एडवांसमेंट की, इन्वेंशंस की, कैसे कर ली? उनके पास तो यही टाइम था। और हमारा फिनोमिना क्या है? जैसे इंडिया अभी चांद पर गया तो उस पर काफ़ी एक फ़नी स्टेटमेंट रिलीज हुई कि पाकिस्तान में तो ये फिनोमिना चल रहा है कि असी चांद ते की जाना है, साढ़े घर दे काम नहीं मुकते। तो आप ये देखिए कि ये एक माइंडसेट है, यू हैव टू ब्रेक डाउन। इतने ही टाइम में लोगों ने इतना सब कुछ अचीव किया, अकॉम्प्लिशमेंट्स की, तो हमें भी सोचना है कि हाउ वी कैन स्पेयर टाइम। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ रहे हैं, तो वी हैव टू सर्च दैट। सर्वे के मुताबिक ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जिन पर ज़्यादातर वक्त स्पेंड किया जाता है: वर्किंग, शॉपिंग, वॉलंटियरिंग, एक्सरसाइजिंग, स्लीपिंग एंड फैमिली एक्टिविटीज़। यही है या इनके अलावा कभी आपने कुछ सोचा इसके अलावा भी हम कुछ कर रहे हैं? इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीबडी स्पेंडिंग टाइम ऑन इट। इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ स्पेशल करना है, ख़ास करना है, तो वी हैव टू रिड्यूस टाइम ऑन एनी ऑफ दिस। अगर आपने कोई बड़ा मार्का मारना है तो आपको अपना स्लीप टाइम शॉर्ट करना पड़ेगा, फैमिली टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा होता है?
कोई बिजनेस मैन तो बड़ा सक्सेसफुल है लेकिन उसकी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है। तो इसको बड़ा आपको ट्रिक के साथ और एफिशिएंटली ट्वीक करना होता है टाइम, और फिर आपने अपनी किसी ना किसी ख़ास शौक को दिया जा सकता है। अब कुछ लोग हैं वो 9 to 5 जॉब भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कोई और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं जहाँ से एकदम उन्हें सक्सेस मिलती है। जी, जस्ट टेक एन ओवरव्यू, ये वो बूस्टर्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट को बेहतरीन करने के लिए आपको लर्न करना है। टाइम मैनेजमेंट खुद से अकेले से नहीं आ जाती। आपने माउंटेनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू बिल्ड योर स्टेमिना, यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, आपको वेट रिड्यूस करना है। हर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। आपने आर्मी में जाना है तो आपकी फिजिकल फिटनेस कुछ नेचुरल चीज़ों को भी देखा जाता है और कुछ ऐसी हैं जो आप बाय द टाइम डेवलप करते हैं। आपकी आईसाइट कैसी है, आपकी फिजिक कैसी है, आप कितने फिट हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है। सिमिलरली आपने अगर टाइम मैनेज करना है तो फिर आप में ये सॉफ्ट स्किल्स भी आपको बाय द साइड डेवलप करना पड़ेंगी, ठीक है। फिर एज अ बाय प्रोडक्ट आपको टाइम मैनेजमेंट मिलेगी। तो वो क्या क्या है, टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ, अवेयरनेस उसके बारे में, फिर है जी गोल सेटिंग, देन प्रायोरिटाइजिंग, मैनेजिंग इंटरप्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग योर शेड्यूल। कोई चीज़ ऐसी जो आपको लग रहा हो कि ये टाइम को मैनेज करने में हमें हेल्प नहीं करेगी, कोई ऐसी टर्म जो आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही हो, चलें हाँ अब इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। जी, गोल सेटिंग, हाउ इट हेल्प्स द टाइम मैनेजमेंट। आप एक लेटर है उस पर एड्रेस ना लिखें और उसे पोस्ट कराएं, वो कहाँ जाएगा, आपके हाथ से भी चला जाएगा क्योंकि अब वो पोस्टमैन उसे कहाँ ले गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास गोल सेटिंग नहीं है तो आप अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपको किसी भी टास्क को एकॉम्प्लिश करने के लिए किसी न किसी टारगेट के साथ जोड़ना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि आपने किन मतलब डिफाइनिंग लाइंस पर चलना है और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो गोल्स सेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका गोल आपको मोटिवेटेड रखे। गोल बिल्कुल शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, डेली गोल्स भी होते हैं हमारे, मंथली भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जब तक उसको टाइम बाउंड नहीं करेंगे यू कैन नॉट अचीव इट। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जो आप सोते में ना देखें। ड्रीम्स आर दोज दैट नेवर लेट यू स्लीप। तो ऐसे ही कोई मोटिवेशनल गोल्स रखें अपनी लाइफ में जिनसे एक नोटिसेबल डिफरेंस आए आपकी ज़ात में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके काम में, ताकि लोग आपको रिकग्नाइज करें। फाइन। एज अ टीचर जैसे आपके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं ना। आपने रेगुलरिटी इंप्रूव करनी है स्टूडेंट्स की, आपने उनकी रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है, आपने अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है। आपका रिजल्ट फॉर एग्जांपल 60% आया है एंड नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गिव 80% रिजल्ट, तो वो 20% में आप कैसे उसको अचीव करेंगे, ठीक है। वो आपने तब गोल सेट करेंगी, तब आप उसके छोटी छोटी बारीकियों को भी जहन में रखेंगी। नेक्स्ट टू दैट इज स्मार्ट गोल्स। आपने एज अ टीचर, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्मार्ट गोल्स से अवेयर होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, काइंडली जस्ट रेज अप योर हैंड। मैं पूछूंगी लेकिन बीच बीच में से एनीबडी हु इज अवेयर। आप सारे मुझे स्मार्ट के लेटर्स का नाम बताएं लेकिन एक दो का तो पता होना चाहिए। हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखना होते हैं। एज अ टीचर आपको शायद वहां से आ जाए, ठीक है। स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि ऐसे गोल्स जो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको खुद पता हो कि आपने अचीव क्या करना है, टारगेट बिल्कुल क्लियर हो। देन मेजरेबल हो, जिनको आप ऑन एंड ऑफ विजिट करके देखें कि मैंने गोल किस परसेंटेज तक अचीव कर लिया एंड हाउ मच इज लेफ्ट। जैसे आप अब इजी एग्जांपल में हम वेट लॉस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने टारगेट सेट किया कि मैंने 10 kg रिड्यूस करना है, तो मैंने कैसे करना है, मतलब वो जो है मेजरेबल, मैं वो देखूं कि क्या मैं ऑन एंड ऑफ चेक कर सकती हूँ
वेइंग मशीन पर कि मेरा वेट रिड्यूस हो भी रहा है कि नहीं, और मैंने जो टाइम उसके साथ सेट किया उसके मुताबिक मैं सही जा रही हूँ, या आई नीड टू इम्प्रूव मोर, या मुझे और रिगरसली इसको मतलब फॉलो करना प्लान को। देन राइटिंग गोल्स, सॉरी स्मार्ट अभी पूरा नहीं हुआ। अचीवेबल होना चाहिए गोल। आप ये कहें कि जी मैं 1 मंथ में 20 kg रिड्यूस कर लूंगी, तो वो मुझे लग रहा है अचीवेबल नहीं है। और अगर आप कर भी लेती हैं बाय एनी मीन, तो वो फिर आपकी एनर्जी बड़ी लो हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगी, जिसको रिकवर करने के लिए दोबारा आपको 10 kg वापस चढ़ाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम अचीवेबल टारगेट्स रखें। जी, आर का मतलब है रियलिस्टिक। आप ये गोल नहीं रख सकती कि जी मैंने चांद पर जाना है और विद इन 1 मंथ। ठीक है, इंडिया वालों ने तो खैर इसको बना दिया है रियलिस्टिक, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं है। देन लास्ट वन इज टाइम बाउंड। टाइम के साथ जब तक गोल नहीं जुड़ा वो गोल नहीं है, वो बस आप एक कोल्हू के बैल की तरह चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। वो भी सारा दिन बेचारा मेहनत करता रहता है, चलता रहता है, लेकिन एंड में वो किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचा, वो जहां से चला था वहीं खड़ा है। तो हमारी भी कंडीशन फिर ऐसी होगी अगर हमने उसको किसी टाइम के साथ नहीं बांधा कि बस आंखें बंद करके कह दिया कि मैं ये चीज़ इंप्रूव कर लूंगी, बस कर लूंगी तो कर लूंगी, दैट्स ऑल, हो गई ना हुई तो भी कोई मसला नहीं। तो दिस इज नॉट स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल वो है जिसको आप अचीव करें। ठीक है, जब हम उसमें इतने मेजर्स का ख्याल रखेंगे तो वो लाजमी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट टू दैट इज स्मार्ट गोल्स, राइटिंग गोल्स। राइटिंग गोल्स में ये एक सर्वे है यूनिवर्सिटी का, उनका एक ग्रेजुएशन का बैच जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट सबसे लिखवाई कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन योर करियर। हर एक ने स्टेटमेंट लिखी, कुछ ने नहीं भी लिखी, जैसे आप लोग भी छुप रहे थे कि हम नहीं लिखना चाहते। जिन्होंने लिखी दे वर सक्सेसफुल 70%, दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट्स। और जिन्होंने नहीं लिखी थी उनमें से बाय लक कोई बहुत कामयाबी हुआ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर नॉट रीचिंग टू देयर गोल्स। क्योंकि हम टाइम के साथ भूल भी जाते हैं हमने फलां टाइम पे क्या गोल लिखा था। आप में से कोई है जिसने एमफिल किया हो, थीसिस कभी लिखा हो? कभी भी आप थीसिस करें तो हमें जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आज आपने जो टॉपिक चूज कर लिया है उसे लिख लें, उसके प्रिंट आउट ले लें और उसको मिरर पे लगा दें, अपनी वार्डरोब में लगा लें, अपने रूम के डोर पे लगा लें, किचन में लगा लें, जहां जहां भी आपके डे का मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड होता है आप वहां पर वो डिस्प्ले कर लें। उससे क्या होगा, ऑलवेज वी विल कीप दैट टॉपिक रिफ्रेश इन आवर ब्रेन। और आप यकीन करें कि मैंने जब तक नहीं किया तब तक मैंने अचीव भी नहीं किया। शुरू में कुछ मंथ्स मैंने भी डिले किया, लेकिन मुझे फिर ऐसे लगा कि टाइम थोड़ा है और हम वेस्ट करें। 1 ईयर देते हैं वो लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 6 मंथ में उसको जैसे तैसे किया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन तभी मैं इग्नाइट अपने पैशन को कर सकी व्हेन आई यूज्ड टू सी दैट टॉपिक एवरीवेयर कि ये मैंने करना है। आज मैंने इस पे काम नहीं किया, आज मुझे टीचर से लाजमी मिलना है, आज मुझे अपना रिसर्च वर्क के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है। तो हमेशा अगर आपने कोई गोल ऐसा आउटस्टैंडिंग बनाया अपनी ज़ात के लिए तो उसको लिख के लगाएं। आपने बाराक ओबामा की भी एग्जाम्पल सुनी होगी कि उसने, ही वॉज अ टीचर, किसी स्टूडेंट ने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट ही सेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट, वहां पे तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो बन गया। तो दिस इज नॉट द मैटर ऑफ आवर्स के हमारे पास कितने घंटे हैं, दिस इज द मैटर हाउ वी यूज दीज आवर्स। हम देखें स्लीप पे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं, शॉपिंग पे कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ चैटिंग पे कर रहे होते हैं, मोबाइल देखने बैठते हैं तो 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलता। तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट यूजिंग आवर टाइम इफेक्टिवली। एक्शन प्लान एक बड़ी यूनिवर्सल सी स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, आई यूज टू कंडक्ट लेक्चर्स फॉर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनी लाइन फेलोज। आप लाइनिज्म के बारे में भी जाने, इंटरनेशनल एनजीओ है, और उसमें जो गोल सेटिंग पर मेरी वर्कशॉप थी उसका पहला सेंटेंस ही ये था कि अ गोल विदाउट प्लानिंग इज अ ड्रीम।
और ये जो मेरा स्कूल है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, हमने उसके मल्टीपल मतलब सॉफ्ट बोर्ड्स पर ये डिस्प्ले किया हुआ है, क्योंकि टीचर्स को भी हर वक्त लेसन प्लान बनाना होता है और टीचर्स यूजुअली अवॉइड करती हैं। वो कहती है मैडम हमें पता है ना क्या करवाना है, वी विल डू इट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप लिख लें, लिखने से आप अपने आप को एक मैसेज दे देते हैं कि मैंने एक तरह की कमिटमेंट कर ली है। कभी भी लिखे हुए वर्ड्स में और ऑरल कमिटमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। और उसके बाद फिर आप लेसन प्लान बनाएं। उस दिन आप जब क्लास में जाएंगी तो आप देखिएगा कि आपके पास वो जो 35 से 40 मिनट की स्लॉट है वो कितनी प्रोडक्टिव हो जाएगी। ठीक है, आप लोग वैसे बाय द वे कितना लेंथ का पीरियड होता है आपका डेली? 35 मिनट्स। यस, द सेम वी आर फॉलोइंग। इंटरनेशनली जो एक टाइम लिमिट दी गई है वो 45 मिनट्स की है। एनीवेज, तो रिटन गोल होना बहुत ज़रूरी है और फिर उसका प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि हमने इसे कैसे पढ़ाना है। हम उसके लेसन प्लानिंग के दौरान ही बुक को ओपन करके भी देख लेते हैं और फिर हम उसमें ये है कि खुद भी हमें पता चल जाता है कौन सी एक्टिविटीज़ कितने ड्यूरेशन की होंगी, उन्हें कैसे मैनेज करना है। राइट? एग्रीड? कोई यस आना चाहिए बड़ा सा। yes. मुझे ये ना लगे कि बच्चे सो रहे हैं। अच्छा जी, स्टैंड फर्म। जब फिर आप वो एक कायदे आजम की कोट है कि थिंक 1000 टाइम्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बट वंस यू हैव मेड अ डिसीजन मेक इट राइट। तो जब आपने गोल बना लिया तो फिर आपने उसको बेटे इसी तरह अचीव करना है। अगर आप उसमें डामाडोल हो गए, काम नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है कि योर गोल इज नॉट वर्किंग, आपने मैयर करके देख लिया, उसका एक्शन चेक कर लिया, तो फिर क्या चेंज करना है? अगर गोल आपका अचीव नहीं हो रहा, आप किसी गोल को अचीव करने की बजाय लूज कर रहे हैं, फिर क्या होगा? यू डोंट नीड टू चेंज द गोल, व्हाट यू नीड टू डू, चेंज द प्लान, एक्शन प्लान। ठीक है, अपना गोल नहीं छोड़ना। क्लियर? एग्रीड? एक एक्टिविटी है, अभी आपके पास हैंडआउट्स हैं, ओपन इट। ऑन द सेकंड पेज यू विल फाइंड एन एक्टिविटी। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में लिखी हुई हैं। ठीक है जी, हैव यू फाइंड दैट? 5 स्टेटमेंट्स आर रिटन इन 1 2 3 4 5 ऑर्डर। अच्छा, इसको जरा गो थ्रू करेंगे। कोई द वन इज, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, लास्ट 5 ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग। राइट। अच्छा, ये एक सीक्वेंस है, ये 5 एक्टिविटीज एट ए टाइम हो रही हैं। अब आप लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे? आपको अगर ये सिचुएशन फेस करना पड़े तो व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी? आप पहले किसको अप्रोच करेंगे? क्या काम पहले करेंगे? क्या दूसरे नंबर पर? क्या तीसरे नंबर पर? जल्दी से पेन से इनका नंबर सीक्वेंस में लिख लें, जैसे 3 4 5 1 2 या 2 1 3 5 4, जो भी है। सर आप भी लिखें। ओके, इफ you will attend the baby, it means you give priority to your family. ठीक है? The next one is pick up the clothes. इसका मतलब है you are giving priority to your life partner, spouse. Okay? The third one is switch the tap off. It means कि you value the wealth more. Then see who is at the door. इसका मतलब है कि आप प्रायोरिटी दे रहे हैं फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को। एंड लास्ट, आंसर द फोन, करियर एंड जॉब। ठीक है, अब आप मुझे जरा बताएं कि आपका क्या सीक्वेंस बना। आप सीक्वेंस बताएं कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे है, और जो एग्री भी करता है कि यस माय प्रायोरिटीज आर लाइक दैट। जी बेटा, आप करना चाहेंगे शेयर? पहला बताएं, पहला क्या है? तो वो किसके साथ एसोसिएटेड हो गया? लाइफ पार्टनर के साथ। जी ठीक है। लेकिन मैंने इसमें ये सोचा था कि मैं सोलो हूं घर पे। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं पहले अपने क्लोज कर लूं तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चले, मेहनत ही है ना, लाइफ पार्टनर के साथ एसोसिएट की हुई है। साइकोलॉजिस्ट ने कि भी
हस्बैंड है तो भागेंगे बीवी की हेल्प करने के लिए। आप महक शेयर करें, आपकी क्या प्रायोरिटीज, आप सिर्फ आंसर्स के साथ रिलेट करें। फोर्थ वन, अच्छा जी, आप फोर्थ में देखें ना क्या है Closer out of the dry. जी। It is एक one सेकेंड, दिस इज लाइफ पार्टनर, सेकेंड वन। सेकंड वन, फर्स्ट द टेलीफोन इज रिंगिंग। ठीक है, आपने भी बेबी को तवज्जो कम ही दी है। मैंने को क्या पता बच्चों की। बिल्कुल नहीं, लेडीज की यूजुअली टेंडेंसी। First priority life partner. मैम ये देखिए ना, अगर हम फोन करके भी कैरी कर सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। That's good. हैं। मल्टीटास्किंग। अच्छा फिर फोर्थ वन, थर्ड वन, समवनस नॉकिंग कॉलिंग यू फ्रॉम। जी, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी आप टाइम दे रही हैं, ठीक है। लास्ट वन, यू लेफ्ट द टैप ऑन द। अच्छा, अब मतलब पैसा आपके लिए सबसे कम मैटर करता है। ठीक है जी, एनीबॉडी एल्स हु इज इंटरेस्टेड टू शेयर जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पानी जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, आपने इस वजह से बचा लिया, ठीक है। उसके बाद जो बेबी क्राइंग है ये, उसके बाद थर्ड जो है वो है कि अगर बारिश हो रही है तो जो कपड़े गीले हो गए ठीक है। वो पानी भी ड्राई कर सकते हैं, इसलिए थर्ड पॉइंट। ठीक है। और जो फोर्थ पे है नोकिंग कॉल करना है, और लास्ट वन इज द टेलीफोन रिंगिंग। प्लीज, थैंक यू। देखा ना, ये प्रायोरिटी अब अब वो बॉय थे, मेल थे, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही विल गिव टू द क्लोथ, अदरवाइज उन्हें ही दोबारा एफर्ट करनी पड़ेगी वॉश करने के लिए। प्लीज सिट डाउन। इनफैक्ट ये जो प्रायोरिटीज हैं ना, ये एज टू एज भी वेरी करती हैं और जेंडर वाइज भी करती हैं। फिर फेज जो चल रहा हो आप पे, जैसे ही इज लिविंग अलोन तो उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, जो फैमिली के साथ रह रहा है उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। तो इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं कि फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। कभी खिलौना, कभी इश्क, कभी पैसा और फिर खुदा खुदा। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग। अब आपने पहले देखा कि गोल सेटिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर गोल नहीं है फिर टाइम मैनेजमेंट सीखने की भी जरूरत नहीं है, फिर ईट स्लीप रिपीट मोड पे रहें। अब है जी प्रायोरिटाइजिंग। अभी हमने जो एक्टिविटी की दैट इज इनफैक्ट एसोसिएटेड टू दिस फेज। प्रायोरिटी किस वक्त जरूरत पड़ती है? जब हम ऐसी ही सिचुएशन में होते हैं, व्हेन वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू एंड वी हैव लिमिटेड टाइम। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सिट एंड थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट रियली नीड्स आवर क्विक अटेंशन। तो वो क्या चीज है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में फिर आगे एक और कैटेगरी आ जाती है, जब आप इंपॉर्टेंट टास्क हाईलाइट कर लें, दैट इज अर्जेंट। ऐसी क्या आपके इन कामों में से, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे ये 5 थे, दे ऑल वर इंपॉर्टेंट। इनमें से अर्जेंट क्या है? दैट नीड्स आवर क्विक अटेंशन एंड हुज डेडलाइन इज अप्रोचिंग। जैसे हम जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली के भी कुछ हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, तो फिर आप किस चीज को फौरन एड्रेस करेंगे? जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में से अर्जेंट इज द टॉप वन। उसके लिए हमारे पास जी 4 वेज हैं अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में से चूज करने के लिए। हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बिटवीन, कि जब हमने आउट ऑफ दीज 2 चूज करना हो तो कैसे करना है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको आप पेपर पर भी बना सकते हैं और जहन पर भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट होगा फ्रॉम द इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई टास्क है और वो अर्जेंट भी है, हर काम हर टाइम पे तो नहीं हो सकता। जैसे एग्जामिनेशन है, वो जिस डेट पर है उसी डेट पर है। ठीक है, तो ये वाले जो काम होते हैं इनको इमरजेंसीज कहते हैं, और ये सबसे पहले हमें डील करना होती हैं। आपने शादी में जाना है तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके कोई रिलेटिव हैं। ठीक है, नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है, तो वो फिर किस चीज में फेज में आता है? प्लानिंग में। उसको आप प्लान करके जाएं, कितने टाइम के लिए जाना है, कितना नहीं टाइम देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कमर साहब ने कहा कि हम इवेंट्स में टाइम पर पहुंच भी जाएं तो इवेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ होता, तो बेहतर है कि फिर उसी हिसाब से जाया जाए। देन नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ऐसे भी काम होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे कोई मिलने के लिए आपको दूसरे सिटी से आया और आज इवनिंग में उसकी फ्लाइट है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है, मिल लें, बाद में गिला रहेगा। ठीक है,
तो इस तरह की कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उनको आप थर्ड प्रायोरिटी पे रखें। और एंड में नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, वो काम क्या है, वो टाइम वेस्टिंग है हमारे लिए। एक काम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, द थिंग्स आर अवेलेबल। आप जैसे शॉपिंग है फॉर एग्जांपल, ना तो कोई इवेंट आ रहा है, बस आपने सोचा है कि मैं कुछ कपड़े सर्दियों के बनाना चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम वेस्टिंग है, उसको अभी डिले किया जा सकता है। सिमिलरली जैसे यूज़ ऑफ मोबाइल है, हम फेसबुक देखते हैं और बस स्क्रॉल डाउन किए जाते हैं, तो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव गोल है तो आप इन चीज़ों को फिर एलिमिनेट कर दें फ्रॉम द लिस्ट ऑफ योर टू डू। तो मूविंग ऑन विद दिस, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू कि प्रायोरिटी सेट करने के लिए क्या करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आपके पास कोई गोल होगा, आपको पता होगा ये मेरे गोल को हेल्प आउट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर आप टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ जो हमने रिसोर्सेज देखे थे कि टाइम मैनेजमेंट को बूस्ट करते हैं, वो थर्ड वन क्या था, मैनेजिंग इंटरप्शंस। इंटरप्शंस होती हैं लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कभी हमने प्लान किया है और अचानक से कोई ऐसी गेस्ट आ जाए, वो कहते हैं कि घर में सभी खुश थे, फिर अचानक पुप्पो आ गई तो कभी ऐसा हुआ कि अर्जेंट काम आप कर रहे हैं या अपनी गोल अचीवमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं और कोई इंटरप्शन सडनली हो जाए, आप घर से निकलने वाले हैं और गेस्ट आ गए हैं, या आप गाड़ी में बैठे हैं और आपने देखा फ्यूल टैंक खाली पड़ा हुआ है, आपके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड है, आप रात चार्ज करना भूल गए, तो फिर इस तरह की इंटरप्शंस के लिए क्या करना चाहिए। ये तो आपके टाइम मैनेजमेंट को ख़राब कर दिया। आज आप रेडी हैं बिल्कुल टाइम पर पहुंचने के लिए किसी जगह पर, और इस तरह की आपको इंटरप्शंस डील करना पड़े। कोई अपना वाकया सुनाइए कि आप क्लास में अपना लेक्चर ले रहे हैं और किसी भी तरह का इंटरप्शन जो है उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, यू कुड नॉट अकॉम्प्लिश योर टास्क प्लान फॉर द डे। हेड ने बुला लिया। जैसे हमने 2 दिन बाद ट्रिप पे जाना है, अच्छा सडनली वो कैंसिल हो जाए ओह की वजह से। एग्जैक्टली हाँ, मोटरवेज ही बंद है, वो कैंसिल हो जाए फिर। ये मेरा हाल है, ये कोई अभी दिल को लगी हुई है ताज़ी ताज़ी चोट जी प्लीज़ बेटे आप शेयर करें। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मैट्रिक के बाद जो बच्चा चाहता है डोमिन होता है कि मैंने ये करना है, इंटर में ये करना है, तो पाकिस्तानी ब्राउन पेरेंट्स वो ये कहते हैं कि जो वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वो उस तरफ उसको ले जाते हैं। ये करें, हाफ यहाँ पे डू दिस, हाफ यूज दिस फील्ड और दिस फील्ड, तो वो बच्चे को ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो जब मतलब अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उस फील्ड में जाना चाहता है तो वो जो उसके गोल होते हैं वो उसके अचीव नहीं होते। अच्छा, फिर उसने प्लानिंग में ये चीज़ क्यों नहीं रखी थी गोल में कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है ये इंटरप्शन तो नहीं बेटे हुई ना, एक सडन चीज़ तो नहीं है, इंटरप्शन होती है सडन, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरप्शन में इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो ही शुड ट्राई टू कन्विंस देम, उनके कोई प्रोस एंड कॉन्स अपने गोल के लेकर आए, कोई अच्छी एग्जांपल उन्हें दिखाए या बताए कि आई वुड लाइक टू सेट सम एग्जांपल। ठीक है, तो बगावत की तो मैं नहीं आपको कहूँगी कि उसको जाना चाहिए, ही शुड गो विद द विलिंगनेस ऑफ द पेरेंट्स, लेकिन कन्विंस कर ले। बगावत के मुताबिक कहा था, तुम में हिम्मत है तो जमाने से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर दो। अच्छा देखें बेटा, एक डिसीजन मेकिंग आ जाती है इसमें, ये डिसीजन है बहुत बड़ा, ठीक है, ये भी सॉफ्ट स्किल है। डिसीजन मेकिंग हर एक की अच्छी नहीं होती। ये भी किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से किसी ने पूछा कि हाउ यू टेक द गुड डिसीजंस, उसने कहा आई लर्नड इट फ्रॉम बैड डिसीजंस उसने कहा अच्छा हाउ डिड यू टेक बैड डिसीजंस, उसने कहा कि जस्ट आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड टुक द डिसीजन बिकॉज देयर वाज नो अदर चॉइस। तो एक्सपीरियंस, अब आपने जब डिसीजन लेना है तो आपको अपने टारगेट जो आप बना रहे हैं उसके लिए PMI की एक्सरसाइज करनी है। PMI होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, उसके मनफी एस्पेक्ट्स देखें माइनस, और फिर अपना इंटरेस्ट देखें। मैंने आपको कहा गोल हमेशा मोटिवेटेड होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो तो सारे नंबर ही ले जाएगा ना,
पॉजिटिव हो सकता है उसमें कम हो आपके, जो आपका एक विश है, गोल है, आपके पास आउट ऑफ 10 3 नंबर आपके आ रहे हैं पॉजिटिव थिंग्स हैं, 4 नेगेटिव हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, तो नाउ चेक योर इंटरेस्ट, आप कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप उसमें अपना हार्ट एंड सोल पुट कर लेंगे टू अचीव इट? इफ यस, देन आप वो बाकी के जितने भी 3 नंबर्स हैं वो पॉजिटिव को दे दें इंटरेस्ट के, एंड टेक द डिसीजन इन द फेवर ऑफ इट। आप देखें, पेरेंट्स ने अगर आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया तो उसमें भी आप पॉजिटिव माइनस एस्पेक्ट देखें। आपका इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज़रूर बताएं, शेयर करें। मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा ऑल द टाइम रिजिड ही होते हैं, लेकिन इन केस अगर वो हैं तो फिर देख लें, अप टू यू। गोल के लिए पेरेंट छोड़ने हैं या पेरेंट के लिए गोल छोड़ना है, दिस इज़ योर ओन चॉइस। तो ठीक है, एनीबॉडी एल्स जो कुछ शेयर करना चाहे? कि इंटरप्शन हो गई जी, हमने क्लासरूम की इंटरप्शन शेयर करवानी है, वो भी बताएं। मैं डेली अपनी नोट पे चेक प्लान करती हूँ, बट सडनली ऐसा होता है हमारे कोई और काम आ जाते हैं, वो नेक्स्ट टारगेट दे देते हैं मुझे, और वो इंटरप्शन होता है। वो इंटरप्शन हो गई और आप अपना गोल अचीव नहीं कर सके। ठीक है, अब आपको पता है क्या क्या इंटरप्शंस होती हैं, इतना तो समहाउ पता चल गया। तो फिर हम क्यों ना उसके लिए एक लॉग बना लें कि ये इंटरप्शंस हमारे टारगेट को अचीव करने में तंग करेंगी। ये सबसे पहले क्या है, इंटरप्शंस लॉग। आप एक लिस्ट बनाएं कि जी मैं क्लास में जाती हूँ तो ऐसा हो जाता है, कोई आके रजिस्टर पकड़ा जाता है कि ये कर लें, कोई मुझे कहता है ये डायरी मेरी लिख दें, कोई आकर मुझे ये कहता है कि 2 मिनट मेरी क्लास को भी साथ देखना, मैं ज़रा नीचे मीटिंग में जा रही हूँ। कभी ब्रेक हो जाती है तो लाउड, इतना बाहर से नॉइजी एनवायरनमेंट होता है कि मैं अपना फोकस नहीं कर पाती। यूजुअली द इंटरप्शंस आर सेम। आप उनको फोर्स ही करते हुए उनका लॉग बना लें और देन ट्राई टू डील विद इट। आप उससे डील कर लेंगे। आप बात करें रेलेवेंट पर्सन से, देखें कोई तो आपके स्कूल में अथॉरिटी बैठी हुई है जो डिसीजन ले रही है, या आप उनको बताएं कि भी इस तरह की इंटरप्शंस जो हैं वो मुझे मेरा क्लास का टारगेट अचीव नहीं करने दे रही। तो आप देखें कि हर चीज़ का सलूशन है, बट यू हैव टू फाइंड द वेज, नॉट एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। स्पोर्ट्समैन के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने हर बॉल नहीं खेलना, ठीक है जी। तो सिमिलरली आपकी क्लास में एक बच्चा तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। डोंट रिएक्ट, डोंट रिफ्लेक्ट, तो वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। डिले भी कर दें किस चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह आपको बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि आपकी नोटबुक्स टाइम पर चेक नहीं हो रही, कुछ खामोश रहें, देखें उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, विद इन द क्लास कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स के हम क्लास में कर सकते हैं। हम अपने पास अपने स्टूडेंट को साथ इन्वॉल्व नहीं करते। उसका हल ये भी हो सकता है कि एक देखें क्लास में मल्टी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, कोई ऐसा है जो फ़ौरन क्विकली काम कर लेता है, आप उसको अपने साथ लगाएं कि ओके टेक अ राउंड और वो फ़लाँ 5 बच्चों को चेक करके आए। आपको पता है आपके क्लास के स्टूडेंट हैं कि उनके स्पेलिंग रॉन्ग होंगे या उनका काम स्लो होगा या कुछ भी, वो आप उनको बच्चे को कहें कि भाई ये 5 को ज़रा आप देखें, इन द मीन वाइल आई एम चेकिंग द नोटबुक्स ऑफ अदर्स। फिर आपने नोटबुक क्लास में अगर चेक करनी है तो आपको उठना पड़ेगा। इफ़ यू विल बी सिटिंग ऑन अ चेयर एंड कॉलिंग द स्टूडेंट टू कम एंड शो मी योर नोटबुक, देन ये तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बाहर से जो भी क्लासरूम में कॉरिडोर में राउंड करने के लिए आ रहा है वो देखेगा कि इस क्लास में ना तो सेटअप है और ना कोई डिसिप्लिन है, ठीक है। तो इस तरह आपको इंटरप्शंस को फोर्स ही करते हुए उनके लिए कोई ना कोई सलूशन हल निकालना है और निकल आते हैं। हम दरअसल टेबल टॉक से घबराते हैं, हम दरअसल एड्रेस करने से घबराते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बस ठीक है ये ऐसे चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दें, ये तो पास्ट प्रैक्टिस है। यू डोंट वांट टू बी द चेंज, ठीक है ना। तो वो आपने चेंज बनना है। शेड्यूल अनअवेलेबल टाइम। घरों में ऐसा होता है आप लेटे हैं जी, टेलीफोन रिंग कर गया, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई, तो कभी बाहर बेल हो गई, आप अकेले तो कभी नहीं घर में रेस्ट कर सकते। घर वाले ना हो तो हम सोचते हैं हम तो आज बेड टाइम अच्छा लेंगे, तो पता लगता है बाहर बेल हो गई, कोई मांगने के लिए आ गया, कोई दूध वाला आ गया, कोई फेरी वाला आ गया, कोई न्यूज़पेपर वाला आ गया। तो इस तरह की चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अनअवेलेबल टाइम आप करें बेल ऑफ, वो करें एरोप्लेन मोड पे टेलीफोन और सो जाएं।
सिमिलरली अगर आप स्कूल में क्लास के दौरान पेरेंट्स की मीटिंग भी रखेंगे कि नीचे पेरेंट आए और भागे जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उस इंटरप्शन को डील करने के लिए आप अपनी अथॉरिटी से कहें कि जी मुझे ड्यूरिंग द लेक्चर ना बुलाया जाए, या पेरेंट प्रायर टाइम लेकर आए तो मैं अपना फ्री टाइम दे दूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज योर दैट टाइम इज़ फॉर द चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स के लिए है, किसी एक बच्चे की वालदा के लिए नहीं है, और वो भी ऐसा बच्चा जो क्लास में भी तंग करता है, वालदा भी आ गई तो भी तंग ही करेंगे। तो इस तरह आपने अनअवेलेबल टाइम्स अपने डिस्क्राइब करने के, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दीज टाइम्स। अक्सर आप टेलीफोन के अगर स्टेटस देखें तो लोगों ने लिखा हुआ होता है कि जी काइंडली टॉक टू मी फ्रॉम 9 to 4, नॉट अवेलेबल आफ्टर 4। इस तरह के मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बिकॉज यू आर CEO ऑफ योर लाइफ तो आप उस हिसाब से खुद अपना टाइम मैनेज करें कि आई एम नॉट अवेलेबल इन दीज आवर्स। किसी ने नहीं पूछा घर की बेल कैसे बंद होगी। हो जाती हैं, बाहर लोग लगते हैं। लॉक में रखते हैं, बताएं लॉक में कैसे। अच्छा हमारे यहाँ ऐसा है कि हमने इनफैक्ट अंदर से भी उसका कनेक्शन रखा है, हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारे घर में बेबी है थैंक यू, हमारे घर में ना बेबी है तो वो नींद खराब होती है उसकी, हम ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने नींद की एग्जाम्पल दी है, मे बी जैसे अभी हम थीसिस की बात कर रहे थे, अभी हम किसी और, आप कोई शॉर्ट कोर्स कर रही हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग ले रही हैं इस तरह के, या इंटरव्यू दे रहे हैं कहीं पर, तो इस तरह के इंटरप्शंस आपकी गोल में रुकावट बनते हैं। तो इनको कैसे एलिमिनेट करना है, 4C करके। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ भी चाहिए। देन है जी चेक-इन्स। चेक-इन्स का भी यही मतलब है, कोई मीटिंग के लिए आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, टीचर्स हैं आपके, कोलीग्स हैं, तो आप उनको भी पहले कह दें कि नॉट ड्यूरिंग द क्लास, व्हेन आई विल बी इन स्टाफ रूम आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो ये आपने स्टैंडर्ड्स रूल्स खुद सेट करने हैं। हम अभी स्कूल के हवाले से बात करें, घरों में भी इसी तरह है। अगर आपने किसी रिलेटिव की तरफ जाना है तो स्पेयर संडे और सैटरडे फॉर देम, या सैटरडे रखें, संडे को आराम करें, अपने काम करें। हु विल डू दैट? कोई भी नहीं करेगा आपके काम, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्केड्यूल मीटिंग्स अवे। जैसे हम घर में मीटिंग की बजाय अगर कहीं बाहर रख लें, ठीक है, इंटरप्शंस नहीं होती। आपकी फ्रेंड आई हैं और आपको पता चल रहा है कि बाहर भाई और छोटी बहन लड़ रहे हैं तो इस तरह के इंटरप्शंस को बचाने के लिए अगर आपकी कोई मीटिंग है और आप स्कूल में ही कर रहे हैं और बाहर बच्चे नॉइज़ करें, ब्रेक में, आपको पता है मीटिंग्स जो हैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। एक तो बच्चों को पता होता है आज टीचर्स चेक नहीं कर रही हमें, तो इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, या जैसे पेरेंट हैं, कभी कभी होता है जी फ्रंट डेस्क पे पेरेंट आ गया, FDO डील कर रही हैं और अंदर क्लास में टीचर रॉन्ग इंग्लिश बोल रही है, वो एडमिशन तो भाग गया ना हमारा। ऐसा कभी हुआ है ना? ऐसे हुआ है। मैं स्कूल गया तो एक टीचर जो है वो, उन्होंने मुझे कहा, अच्छा उसको 12:30 बजे कहती कि सर गुड मॉर्निंग। मैंने घड़ी की तरफ इशारा किया, सर गुड नाइट। ऐसा हो जाता है एट टाइम्स, स्पेशली व्हेन वी आर कॉन्शियस कि कोई हमें देख रहा है तो आपसे गलती होगी, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट कैजुअली तो फिर वो नहीं, मिस्टेक के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपनी कोई मीटिंग्स आपने इंपॉर्टेंट करनी हो तो कोशिश करें कि उनको सेपरेट कर लें। ठीक है। तो ये चंद एक रूल्स हैं, ये इनफैक्ट जेनेरिक है, दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल who are working in school, who are dealing at home, who are working in any company and organization। तो ये सभी के लिए अभी हम जेनेरिक पे हैं जी। मूविंग अवे, लास्ट हमारा जो एक रिसोर्स है वो है ऑर्गेनाइजिंग योर स्केड्यूल। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कैलेंडर मार्क करते हैं कि ये काम मैंने इस डेट पे करना है, दैट्स ऑल। जैसे हम अभी प्लानिंग की बात कर रहे थे, गोल सेटिंग की बात कर रहे थे, आपके पास मल्टीपल काम हैं, आपने शादी भी अटेंड करनी है, एक मीटिंग भी अटेंड करनी है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करना है, शॉपिंग के लिए भी जाना है। ठीक है। एक ही वीक है और मल्टीपल टास्क हैं और आपका ट्रिप भी है जी सैटरडे को। ठीक है। तो आपने कितना कुछ करना है, तो फिर आप अपना जो कैलेंडर है उसे मार्क करें। मेरे हस्बैंड की एग्जांपल है, ही गॉट अ चांस टू सर्व द लाइन्स इन क्लब्स इन इंटरनेशनल एज अ DG, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं इस साल, और एवरी अदर डे ही हैज़ टू गो ऑन विजिटेशन ऑफ द क्लब। सिमिलरली स्कूल के बहुत से अफेयर्स हैं, जैसे अभी इन्होंने शील्ड भी बनाना है, एक इवेंट आ रहा है वो भी अटेंड करना है, हाई अचीवर सेरेमनी।
फिर इसके अलावा कोई डिबेट कंपटीशन आ रहा है, उन बच्चों को भी देखना चाहते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके टेस्ट सेशन शुरू होना है, उनका रिजल्ट भी देखना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही हैज़ अ प्लानर डिस्प्लेड ऑपोजिट टू हिज चेयर, उसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। इवन हमें फैमिली के लिए भी लेना हो तो ये कैलेंडर की पिक्चर वो शेयर कर देते और हमें पता होता है कौन कौन सा डे बीच में खाली है, किस दिन हम इनको एंगेज कर सकते हैं। तो इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा काम होते हैं, गोल्स होते हैं, दे हैव टू शेड्यूल देयर लिस्ट, ऑर्गेनाइज करें खुद को भी और दूसरों को भी एजुकेट करें कि जी ये मेरे पास टाइम अवेलेबल है, ये नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को, अपने कोलीग्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी ऑन योर साइड। ठीक है ना, डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, तो फिर आप देखें पीपल विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग टू यू। अच्छा जी, इसके लिए ये चंद एक स्किल्स हैं। हर चीज दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको जैसे कहा कि किसी भी चीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब चाहिए होता है तो मल्टीपल चीजें देखी जाती हैं कि आप में ये है। तो टाइम मैनेजमेंट कैन नॉट बी लर्नड ऑल अलोन। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपके बिहाइंड ये स्किल्स की सपोर्ट होनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर नोन एज लाइफ स्किल्स। अब लोग डिग्री पे कम जाने जाते हैं और उनकी लाइफ स्किल्स पर ज़्यादा। इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, आपकी डिग्री, आपने मास्टर्स किया इंग्लिश में या इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में, दैट डज नॉट मैटर बिकॉज यू आर नॉट जस्ट डिस्प्लेइंग डिग्री ऑन योर लाइक नेक और नेकलेस में। आपको क्या करना है, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट बेटर, इफ़ यू कैन नॉट लाइक कन्वे योर मैसेज टू द अदर्स, you are not considerable for any of the bigger opportunity. अच्छा जी, बी एफिशिएंट, वही बात, आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा। एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस तो करें कि मैं क्या काम कितनी देर में कर सकती हूँ। हमें तो अपने बारे में भी नहीं पता। सबसे कम हम किसको जानते हैं? खुद को। हमें अगर लोग कहते हैं कि तुम मतलब इनएफिशिएंट हो तो हम घर में डिप्रेशन में बैठ जाते हैं, मैं इनएफिशिएंट हूँ उसकी नज़र में। भाई आप खुद को भी तो जाने, आपका अपना भी तो एक एक्सपीरियंस हो सकता है उसने आपको इनएफिशिएंट करने के लिए कॉन्फिडेंस शेक कर दिया हो। यू आर नॉट लुकिंग प्रीटी टुडे, आप उन्हें कहें कोई बात नहीं, मैं जो हूँ। एक शख्स ने शादी पे जाना था ना, तो वो किसी के पास गया कि मुझे कपड़े दे दे अपने, मैंने फ़लाँ जगह शादी पर जाना है। उसने पूछा कि क्या वो आपको जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आपको कपड़ों की क्या ज़रूरत, उन्हें पता है कि आप इस काबिल नहीं है। उसने पूछा और अगर वो ना जानते हों तो उन्होंने कहा फिर भी आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए दूसरों की नज़र से ख़ुद को मत देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ रिलायंट करें, अपनी एबिलिटीज़ पे ख़ुद यकीन करना सीखें, तो देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अदरवाइज़ तो फिर आप अपने आप को भी पहले चेंज करेंगे तो वर्ल्ड तक जाएंगे। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आपने प्लान ज़रूर करना है कि एक दिन में मैं कितने टास्क कर सकती हूँ। मैनेजिंग टास्क, फिर उन कामों को मैनेज करना है कि कैसे मैंने जाना है, आना है, ट्रांसपोर्ट टाइम कितना लगेगा। डेलीगेट करें, बहुत से काम ऐसे हैं जो आप डेलीगेट कर सकती हैं अपने बहन भाइयों को, अपने कोलीग्स को। आप 50 काम तो नहीं कर सकती, जैसे इनकी मैं भी एग्जांपल दे रही थी, तो इन्होंने ऑल्दो वो काम काफ़ी हद तक डेलीगेट भी किए हुए हैं। मल्टीपल टीचर्स को या हेड्स को बुलाकर मल्टीपल चीज़ों का इंचार्ज बना दिया, बिकॉज वन मैन शो तो नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टीम गेम, आपको टीम के साथ चलना है। तो आपको जब तक टीम की एबिलिटीज़ का नहीं पता, आप कैसे उन्हें काम असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कि रॉन्ग डिसीजन ही राइट सिखाते हैं, उसमें आप रॉन्ग असेसमेंट भी कर लेते, किसी ऐसे शख्स को काम दे देते हैं जो इस काबिल नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको काम नहीं मिलता। एंड देन एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉयमेंट के लिए टाइम ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि दुनिया को बदलते बदलते या दुनिया को इम्प्रेस करते करते अपना आप ही लूज़ कर दें। तो दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी, रिव्यू कर लें एक दफ़ा हमने क्या क्या हासिल कर लिया। हम चलते हैं, आप भी अपना ओपन करें वो ऑब्जेक्टिव सेशन जी। क्या आपने रिकग्नाइज कर लिया कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? जो नॉट इम्पॉर्टेंट हों और नॉट अर्जेंट हों। फिर आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू इंप्रूव टाइम, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जी? प्रायोरिटाइजिंग
sorry, goal setting, prioritizing, then managing interruptions, and then organize your schedule. ठीक है. लास्ट वन क्या है? अप्लाई टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स टू योर डेली रूटीन. अब आपने इतनी टेक्निक्स सीख ली हैं कि आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन पे. देखें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप परफेक्शन को तो भूल ही जाए. आप ये नहीं हो सकता कि हमने आज बातें की, सीखा और कल हम जाकर तो कामयाब हो गए. बट बात है वही कि स्टे फर्म, आप जो करना चाहते हैं. ये था एक जनरल पिक्चर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट.